احبار چھٹا باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں۔ وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمام پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا۔ جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے، اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نذر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا،
इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो, वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावन के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सौखनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए। वो नहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने, वो उसे खाए। वो जगह पाक में यानी खैमाए इज्तमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए, वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है, तू उसे किसी पाक जगह में धोना। और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए, तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए, तो उस बर्तन को मांजकर पानी से धो लिया जाए। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमाए इज्तमा के अंदर पाक मुकाम में कफारा के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी न खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। अहबार 7वां बाब। और जुर्म की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है, वो नहायत मुकद्दस है। जिस जगह सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं, वहीं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़िबा करें, और वो उसके खून को मज़बा के गिर्दागिर्द छिड़के, और वो उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, यानी उसकी मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की जिल्ली गुर्दों समेत, इन सब को वो अलग करे। और काहिन इनको मज़बा पर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी के तौर पर जलाए। ये जुर्म की कुर्बानी है। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, और किसी पाक जगह में उसे खाएं, वो नहायत पाक है। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसी खता की कुर्बानी है, और उनके लिए एक ही शरअ है, और उन्हें वही काहिन ले जो उनसे कफारा देता है। और जो काहिन किसी शख्स की तरफ से सौख्तनी कुर्बानी गुजरानता है, वही काहिन उस सौख्तनी कुर्बानी की खाल को जो उसने गुजरानी अपने वास्ते ले ले। और हर एक नजर की कुर्बानी जो तनूर में पकाई जाए, और वो भी जो कढ़ाई में तैयार की जाए, और तवे की पकी हुई भी उसी काहिन की है जो उसे गुजराने। और हर एक नजर की कुर्बानी, खा उसमें तेल मिला हुआ हो या वो खुश्क हो, बराबर बराबर हारून के सब बेटों के लिए हो। और सलामती के ज़बीहा के बारे में जिसे कोई खुदावंद के हजूर चढ़ाए, शरअ ये है कि वो अगर शुक्राना के तौर पर उसे चढ़ाए, तो वो शुक्राना के ज़बीहा के साथ तेल मिले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां और तेल मिले हुए मैदा के तर कुलचे भी गुजराने। और सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी के साथ जो शुक्राना के लिए होगी, वो खमीरी रोटी के गिरदे अपने चढ़ावे पर गुजराने। और हर चढ़ावे में से वो एक को लेकर उसे खुदावंद के रूबरू हलाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। और ये उस काहिन का हो जो सलामती के ज़बीहा का खून छिड़कता है। और सलामती के ज़बीहों की उस कुर्बानी का गोश्त जो उस तरफ से शुक्राना के तौर पर होगी,
कुर्बानी चढ़ाने के दिन ही खा लिया जाए। वो उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। पर अगर उसके चढ़ावे की कुर्बानी मन्नत का या रजा का हदिया हो, तो वो उस दिन खाई जाए जिस दिन वो अपनी कुर्बानी गुजराने, और जो कुछ उसमें से बच रहे वो दूसरे दिन खाया जाए। पर जो कुछ उस कुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और उसके सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा, और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरूह बात होगी, और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जो गोश्त किसी नापाक चीज से छू जाए खाया ना जाए, वो आग में जलाया जाए, और ज़बीहा के गोश्त को जो पाक है वो तू खाए। लेकिन जो शख्स निजासत की हालत में खुदावंद की सलामती के ज़बीहा का गोश्त खाए वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और जो कोई किसी नापाक चीज को छुए, खा वो इंसान की निजासत हो या नापाक जानवर हो या कोई नजस मकरूह शय हो, और फिर खुदावंद की सलामती के ज़बीहा के गोश्त में से खाए, वो भी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि तुम लोग ना तो बैल की, ना भेड़ की और ना बकरी की कुछ चर्बी खाना। जो जानवर खुद बखुद मर गया हो और जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और कामों में तो लाओ, पर उसे तुम किसी हाल में ना खाना। क्योंकि जो कोई ऐसे चौपाए की चर्बी खाए जिसे लोग आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, वो खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और तुम अपनी सुकूनत गाहों में कहीं भी किसी तरह का खून, खा परिंदे का हो या चौपाए का, हरगिज ना खाना। जो कोई किसी तरह का खून खाए वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जो कोई अपना सलामती का ज़बीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, वो खुद ही अपने सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी में से अपना चढ़ावा खुदावंद के हजूर लाए। वो अपने ही हाथों में खुदावंद की आतशीन कुर्बानी को लाए, यानी चर्बी को सीना समेत लाए, कि सीना हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए। और काहिन चर्बी को मज़बा पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो। और तुम सलामती के ज़बीहों की दाहिनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बीहों का खून और चर्बी गुजराने, वही वो दाहिनी रान अपना हिस्सा ले। क्योंकि बनी इस्राएल की सलामती के ज़बीहों में से हलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान को लेकर मैंने हारून, काहिन और उसके बेटों को दिया है, कि ये हमेशा बनी इस्राएल की तरफ से उनका हक हो। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से हारून के ममसूह होने का और उसके बेटों के ममसूह होने का हिस्सा है, जो उस दिन मुकर्रर हुआ जब वो खुदावंद के हजूर काहिन की खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर किए गए, यानी जिस दिन खुदावंद ने उन्हें मसा किया। उस दिन उसने ये हुक्म दिया कि बनी इस्राएल की तरफ से उन्हें ये मिला करे, सो उनकी नस्ल दर नस्ल ये उनका हक रहेगा। सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी और तखसीस और सलामती के ज़बीहा के बारे में शरअ ये है, जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को उस दिन कोहे सीना पर दिया, जिस दिन उसने बनी इस्राएल को फरमाया कि सीना के बियाबान में खुदावंद के हजूर अपनी कुर्बानी गुजराने। अहबार 8वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा,
हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढ़ों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमायत को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमायत खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जमा हुई। तब मूसा ने जमायत से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर आफूद लगाया और आफूद की कारीगरी से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में ओरीम और तोईम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को और हौज और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सिर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियां पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सिर पर रखे। फिर उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने आंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की जिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सौख्तनी कुर्बानी के मेंढे को हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के अज़ू को काट कर अलग किया और मूसा ने सिर और अज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बा पर जलाया। ये सौख्तनी कुर्बानी राहत अंगेज खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी थी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को, जो तखसीसी मेंढा था, हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दाहिने कान की लौ पर
और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और बाकी खून को उसने मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाहिनी रान, इन सबों को लिया, और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हजूर रहती थी, बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकालकर उन्हें चर्बी और दाहिनी रान पर रखा। और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया और उनको मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। ये राहत अंगेज खुशबू के लिए तखसीसी कुर्बानी थी। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीना को लिया और उसको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। उस तखसीसी मैंडे में से यही मूसा का हिस्सा था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने के तेल और मज़बा के ऊपर के खून में से कुछ कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर और साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का, और हारून और उसके लिबास को और उसके बेटों को और उनके लिबास को मुकद्दस किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि ये गोश्त खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर पकाओ, और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ, जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं। और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारी तखसीस के अय्याम पूरे न हों, तब तक यानी 7 दिन तक तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, क्योंकि 7 दिन तक वो तुम्हारी तखसीस करता रहेगा। जैसा आज किया गया है, वैसा ही करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है, ताकि तुम्हारे लिए कफारा हो। सो तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर 7 रोज तक दिन रात ठहरे रहना और खुदावंद के हुक्म को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है। पस हारून और उसके बेटों ने सब काम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। अहबार 9वां बाब। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और बनी इसराइल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हों लो, और सलामती के ज़बीहा के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था, सब खैमाए इज्तिमा के सामने ले आए, और सारी जमायत नजदीक आकर खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो, और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नजदीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी गुजरान, और अपने लिए और कौम के लिए कफारा दे, और जमायत के चढ़ावे को गुजरान,
اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذبح پر جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوکھنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر تھا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور داہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے، اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوکنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ اخبار 10واں باب۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے مسیال اور الصفن کو جو ہارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں العزیز اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں
اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو۔ پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں، اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نذر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو، اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا، اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے، تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا۔ پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے۔ تب وہ ہارون کے بیٹوں الیعزر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا، اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے، وہ جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو، تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو، اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا، پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اور مجھ پر ایسے ایسے حادثے گزر گئے۔ پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا،